Good evening, my talented students. Find the general solutions of sin theta is equal to 1 by 2 and hence find its principal solutions. This is out of syllabus I am teaching you for maybe used in JEE or CET. Hence find principal solutions बोला तो पहले जनरल सोल्यूशन निकालना और उसके बाद प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे फाइंड करना आई विल टेल यू. नाउ sin थीटा इज इक्वल टू 1 by 2 प्लस रहा तो डरने की बात नहीं है. सबसे छोटा एंगल जो आपको साइन की वैल्यू 1 by 2 देता है वो कौन है? पाई बाय 6. ओके, तो देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 1 by 2 की जगह क्या लिखूंगा? sin पाई बाय 6. यूजिंग sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z. करेक्ट है? देयरफॉर इस केस में अल्फा कौन है? पाई बाय 6. तो आंसर क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस minus 1 to the power n into pi by 6, equation number 1. This is the required general solution. Easy, very easy. Now second part, how to find principal solutions from the general solution. तो put n is equal to 0, 1, 2 put करना चालू करेंगे. Put n is equal to 0 in 1, we get theta is equal to n की जगह 0 put किया, 0 हो गया. Minus 1 to the power 0, anything raised to 0 is 1 into pi by 6, answer is pi by 6. We all know sin pi by 6 is 1 by 2. एक सोल्यूशन मिल गया और ये pi by 6 0 और 2 पाई के बीच में है. प्रिंसिपल सोल्यूशन किसको बोलते हैं? जो सोल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में है. तो ये हो गया pi by 6 0 2 पाई के बीच में प्रिंसिपल सोल्यूशन. Now if I put n is equal to 1 in equation 1, I get theta is equal to 1 pi plus minus 1 to the power 1 into pi by 6, pi minus pi by 6, 6 pi minus pi upon 6, answer is 5 pi by 6. This is principal solution. Now if I put n is equal to 2 further, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे n is equal to 2 पुट किया तो कितना होगा? 2 pi प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस 1. तो ये होगा 2 pi प्लस pi by 6. 2 pi प्लस pi by 6 बोला तो 2 pi के आगे चले गए अपन लोग. Had it been 2 pi minus pi by 6 would have come inside the 0 to 2 pi bracket. But since it is 2 pi plus pi by 6, it goes beyond 2 pi, therefore it cannot be a principal solution. Clear? तो प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने मिले मेरे को? सिर्फ 2. हाउ? by putting n is equal to 0 and n is equal to 1 in equation 1. Next example, find the general solution of cos 2 theta is equal to minus 1 by root 2. फिर से एक बार अली जफर एंड तापसी पन्नू माइनस साइन को नीचे किया. क्या दिख रहा है आपको? 1 by root 2. किस एंगल की, आई रिपीट, किस एंगल की cos वैल्यू 1 by root 2 आती है? 45 डिग्री. तो cos of pi by 4 is equal to 1 by root 2. Cos of pi by 4 is equal to 1 by root 2 आ गया. Also by allied angles, cos of pi minus theta is equal to minus cos theta. Minimum most. मैं cos of pi plus theta भी बोल सकता था. Cos of pi plus theta कितना आता है? minus cos theta. लेकिन वो minimum नहीं रहेगा. Pi minus theta is the minimum. So put theta is equal to pi by 4. Therefore cos of pi minus pi by 4 is equal to minus cos pi by 4. ऐसे हम लोग cos of 3 pi by 4 is equal to minus 1 by root 2. करेक्ट है? इसका मतलब क्या हो? Instead of minus 1 by root 2, I can put cos of 3 pi by 4 in equation 1. So therefore we get cos 2 theta is equal to cos of 3 pi by 4. ना इसमें थीटा कौन है एक्चुअली बताएगा? 2 थीटा है, थीटा नहीं है. थीटा 2 थीटा है और अल्फा कौन है? 3 pi by 4. और फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n pi. I repeat, theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to z. Cos theta is equal to cos alpha implies theta is equal to 2n pi plus minus alpha. अब इसमें थीटा कौन है एक्चुअली? इस केस में 2 थीटा है. तो therefore 2 थीटा इज इक्वल टू, ये गलती नहीं करना. हाँ, यहाँ 2 थीटा, 2 थीटा, यहाँ 3 थीटा होता तो 3 थीटा.
So 2 theta is equal to 2n pi plus minus 3 pi by 4. Now I want the value of theta. Divide by 2. So theta is equal to n pi plus minus 3 pi by 8. N belongs to Z is the required general solution of cos 2 theta is equal to minus 1 by root 2. Find the general solution of tan 3 theta is equal to minus 1. ये एग्जाम्पल 4 का सेकंड है. अपनी लैंग्वेज थोड़ी अलग रखने वाले अपन लोग. ओके ना tan 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस लिखना और 1 अलग से लिखना इक्वेशन 1. अभी क्या करना, माइनस n को डिचकिया करो. माइनस n को डिचकिया किया तो क्या बचता है, वी नो दैट tan ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1. करेक्ट है. अब ये 1 किसका tan वैल्यू आती है, पाई बाय 4. तो tan ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 हो गया. नाउ अपने को 1 चाहिए कि माइनस 1 चाहिए, माइनस 1. तो यूजिंग अलाइड एंगल्स tan of pi minus pi by 4 is equal to minus tan pi by 4. I repeat, tan of pi minus pi by 4 is equal to minus tan pi by 4. करेक्ट है. अब इसका एलसीएम लो, 4 pi minus 1 pi यानी कितना 3 pi by 4 is equal to minus of और tan 45 इसको भूल जाओ. हाउ मच इज tan 45? 1. तो हो गया माइनस ऑफ 1. ओके. अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में डालना है, यानी tan 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 के जगह क्या पुट करना है अपने को, tan ऑफ 3 पाई बाय 4. वेरी गुड. तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4. ये आपको इक्वेशन मिल गया. नाउ इन CET एंड JEE दिस इज गोइंग टू बी आवर डायरेक्ट स्टेप. इतनी अपन बचा लेंगे. कैसे बताता हूं. tan 45 1. आज के बाद tan पाई बाय 4 1, tan पाई बाय 4 1, tan पाई बाय 4 1, tan 3 pi by 4 minus 1, tan 3 pi by 4 minus 1, tan 3 pi by 4 minus 1. तो you can directly replace minus 1 की जगह tan of 3 pi by 4. तो tan theta is equal to tan of 3 pi by 4 डायरेक्ट स्टेप रहेगी आपकी for JEE and CET. डायरेक्टली you can write. हो गया क्लियर अभी. अब ये आता है कौन सा फॉर्म, tan theta is equal to tan alpha. करेक्ट है. What is the formula for tan theta is equal to tan alpha? Tan theta is equal to tan alpha implies theta is equal to n pi, 1n pi plus alpha, where n belongs to Z. I repeat, tan theta is equal to tan alpha implies theta is equal to n pi plus alpha. Theta is equal to n pi plus alpha. इसमें theta कौन है? Very good. theta कौन है? 3 theta. alpha कौन है? 3 pi by 4. So therefore 3 theta is equal to n pi plus alpha यानी कौन हो गया 3 pi by. बट आंसर में यू वांट थीटा और 3 theta. 3 theta अगर आपको चाहिए तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3. वी गेट थीटा इज इक्वल टू n pi by 3 plus 3 pi by 4 upon 3. 3 cancel. Answer is theta is equal to n pi by 3 plus pi by 4. n belongs to Z is the required general solution. Now इसी का एग्जाम्पल 4 का थर्ड देखते हैं. sin 4 थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2 इक्वेशन 1. अब आप ये देखो इसमें माइनस साइन नहीं है तो आपको डिचकियां करने की जरूरत नहीं है. मिनिमम मोस्ट एंगल जिसकी साइन वैल्यू रूट 3 बाय 2 आती है वो चेक करो. वी नो दैट साइन ऑफ पाई बाय 3 इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2. I repeat, sin of pi by 3 is equal to root 3 by 2. Put this value in equation 1. We get sin of 4 theta is equal to sin of pi by 3. Sin of 4 theta is equal to sin of pi by 3. कौन सा फॉर्मूला? बिल्कुल सही है. वेरी गुड. Using sin theta is equal to sin alpha implies theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n alpha. n belongs to Z. इसमें थीटा कौन है? 4 थीटा. अल्फा कौन है? पाई बाय 3. तो आंसर क्या आएगा? 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 3. n बिलोंग्स टू Z. अब आपको आंसर में थीटा चाहिए कि 4 थीटा चाहिए? थीटा. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4. तो ये आता है थीटा इज इक्वल टू
4 थीटा को 4 से डिवाइड किया तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 4 प्लस minus 1 to the power n into pi by 12. n belongs to z is the required general solution. Now new theorem. The general solution of sin square theta is equal to sin square alpha. Sin square theta is equal to sin square alpha is theta is equal to n pi plus minus alpha. n belongs to z. अब याद रखने का टेक्निक आपको बताता हूं मैं. ज्यादा फॉर्मूले याद रखने का नहीं. साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स अल्फा. करेक्ट है. cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. ये भी करेक्ट है. तो स्क्वायर्स वाले सारे थ्योरम्स में स्क्वायर्स वाले सारे थ्योरम में थीटा इज इक्वल टू साइन का पहला पार्ट कॉस का दूसरा पार्ट. आवर ट्रिक. फिर से बोलो मेरे साथ. साइन का पहला पार्ट कॉस का दूसरा पार्ट. साइन का पहला पार्ट कौन है? n पाई. कॉस का कौन है? प्लस माइनस अल्फा. तो फॉर्मूला देखो. थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. यानी अपना टेंशन खत्म हो गया. अभी टेंशन ही नहीं. स्क्वायर वाला कुछ भी आने दो. ये भी देखो. cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा. थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. स्क्वायर वाले कोई भी में आंसर बोलो. थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. ट्रिक क्या है? साइन का पहला पार्ट n पाई प्लस माइनस यानी cos का दूसरा पार्ट प्लस माइनस अल्फा. तो आंसर आ गया n पाई प्लस माइनस अल्फा. सो याद रखने का टेक्निक हर एक को क्लियर हो गया. स्क्वायर वाले थ्योरम्स में साइन का पहला पार्ट यानी n पाई, कॉस का दूसरा पार्ट यानी प्लस माइनस अल्फा इज अवर ट्रिक. ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है. अब प्रूफ देखते हैं. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा. देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा. फुल्ली एग्रीड. Therefore, sin theta is equal to sin alpha or sin theta is equal to minus sin alpha. Fully agreed. अब sin theta is equal to sin alpha implies theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha, or theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into minus alpha. क्योंकि इस केस में अल्फा कौन है? माइनस अल्फा. तो ये हो गया n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा. एक आया n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू माइनस अल्फा. दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. फिर कुछ लोग बोलेंगे सर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा. प्लस माइनस यहाँ डालना पड़ेगा आपको. तो जब प्लस माइनस है तो माइनस 1 टू द पावर n कोई वैल्यू रखता नहीं है. एंड देयरफॉर द आंसर इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. n बिलोंग्स टू z. इससे अच्छी मेथड जो है वो सेकंड है, अल्टरनेटिव प्रूफ. साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डायरेक्ट फॉर्मूला है. इसको अपने को इंटीग्रेशन में भी यूज करना है. इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. ओके. नाउ ये आता कहां से है? तो उसका बेसिक फॉर्मूला है cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2. तो ये फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा अपॉन 2. 2 कैंसिल हुआ. क्या बचा? 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा. 1 आपस में कैंसल. माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 2 अल्फा. माइनस माइनस भी कैंसल. बचा क्या? cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा. अब यूज करेंगे फॉर्मूला ये वाला. cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. अब इसमें थीटा कौन है? 2 थीटा. वेरी गुड.
अल्फा कौन है? 2 अल्फा। तो आंसर क्या आएगा? 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा 2 अल्फा है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा कॉमा n बिलोंग्स टू z। किससे डिवाइड करोगे? 2 से, क्योंकि अपने को थीटा चाहिए। Therefore थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। तो याद रहेगा हाउ टू राइट साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। हाउ टू राइट साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2। ओके, नाउ theorem 3.5, the general solution of cos square theta is equal to cos square alpha is theta is equal to n pi plus minus alpha, n belongs to z। now cos square theta is equal to cos square alpha दिया हुआ है। what is the formula for cos square theta? directly 1 plus cos 2 theta upon 2। what is the formula for cos square alpha? 1 plus cos 2 alpha upon 2, 2 2 cancel, बचा कौन? 1 plus cos 2 theta is equal to 1 plus cos 2 alpha, 1 1 cancel, बचेगा कौन? cos 2 theta is equal to cos 2 alpha, cos cos, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा फिर से? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, बट थीटा कौन है? 2 थीटा, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। किससे डिवाइड करोगे? 2। क्या बचा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z इज द आंसर। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 1 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर आ गया, यानी अपना स्क्वायर्स वाले फॉर्मूले शुरू हो गए। साइन का पहला पार्ट, कॉस का दूसरा पार्ट। 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मींस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। ना इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लिखना है, आपको ध्यान रखना। इधर cos स्क्वायर थीटा है ना, तो इधर भी क्या चाहिए अपने को? स्क्वायर चाहिए। तो उसको लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। अब किस एंगल की cos वैल्यू 1/2 आती है? π/3। तो ये हो गया cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos ऑफ π/3 का होल स्क्वायर। यू मे राइट इट एज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ π/3। वन एंड द सेम, वन एंड द सेम। यूजिंग cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। साइन का पहला पार्ट, cos का दूसरा पार्ट, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। तो थीटा आएगा, थीटा थीटा ही है, बट अल्फा कौन है? वेरी गुड, अल्फा कौन है? π/3। ये कौन है? अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू z इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। देयरफॉर आंसर शुरू किया अपन ने, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब इधर होल स्क्वायर तो इधर भी होल स्क्वायर लिखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो 3/4 किसका होल स्क्वायर है? √3/2 का होल स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ π/3 का होल स्क्वायर, यानी sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin ऑफ π/3 का होल स्क्वायर। तो इसमें अल्फा कौन आता है? π/3। यूजिंग sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, ये जो है इसमें ये अल्फा है, यानी n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू z इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन।